This is computer system environment. In that we're going to study about the computer, we're going to study about hardware and software. Okay, we already started with computer system. Yesterday lectures we did hardware also, you have given me good response. Hardware, about software. Okay, then we have seen let's see what is the humanware. Okay, computer needs human being at every stage for to design and manufacture computer machine, then to prepare the program and software, and next to actually operate the computer. See, as I told you, okay, computer is smart, but computer is not intelligent. Okay, computer cannot take the decision. And yesterday I explained you about how if I want to schedule the meeting, I cannot say my smartphone or my computer or my laptop to schedule the meeting. I have to do with this. That means computer do the work on the basis of the instruction provided to the computer. That means computer is just a machine, okay, that require hardware and software, and with the help of the hardware and software computer can work. Okay, so computer require human being first to manufacture. Okay, the person who कंप्यूटर को बनाया भी ह्यूमन बीइंग ने है. ओके, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली. कंप्यूटर को डिजाइन करने वाला भी जो है वो ह्यूमन बीइंग है. ओके, ठीक है. तो दिस ऑल टुगेदर, जिसने कंप्यूटर बनाया, जिसने कंप्यूटर डिजाइन किया, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया, ऑल दिस सिस्टम एनालिस्ट और डिजाइन ये ह्यूमन बीइंग है. तो कंप्यूटर को ह्यूमन बीइंग चाहिए. कंप्यूटर कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग. ओके, then next is what is meaning of procedure. Procedures mean a series of operation in a certain order or manner to achieve a desired result. Okay, that means that if you want to achieve the result, you have to do the work. For example, see a very simple example. If you want to pass in the examination, okay, if you want a good grade, what you will do? First of all, you arrange the book. Okay, then you will decide. Suppose there are 3 unit, or there are 4 unit, or there are 5 unit, and suppose your aim is to earn only passing mark. Okay, so then you will going to learn only 1 unit or 2 unit. But suppose if you want 50-60%, at that time you will go for 3rd unit also. But suppose if your aim of achieving the higher percentage, you're going to learn the entire book. Okay, after the first step is you arrange the book. The second stage you will going to learn the entire book, and then you will appear for the examination. This is all procedure. Same way in computer also there are 3 types of procedure. First is hardware, second one is software, and third one is internalware. Now what is hardware? Okay, आपको पता है hardware क्या है? Hardware जो machines है. ओके, सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर के सिस्टम है, प्रोग्राम है, एंड देन देयर इज द इंटरनल प्रोसीजर. देन हम लोग जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट द कंपोनेंट एंड देयर मेथड. जैसे फॉर एग्जांपल आपका लैपटॉप है, आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, ये सारी चीजें आपकी हार्डवेयर है. सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन, और सॉफ्टवेयर जो है वो कमांड देता है. फॉर एग्जांपल आपकी MS ऑफिस जो है, आपका जूम वर्जन जो है, ये सब जो है वो सॉफ्टवेयर है. ओके, नेक्स्ट उसके लिए क्या चाहिए? नेक्स्ट, इंटरनल प्रोसीजर इंश्योर्स द स्मूथ फ्लो ऑफ डेटा कंप्यूटर बाय यूजिंग द लाइंग डाउन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ ईच subsystem of overall computer system. For example, see, I'll schedule the Zoom meeting, I'll send link to you, you click on the link. Or sometimes, suppose if you want to join from the computer laptop, you can write in the you can join with the help of the laptop also. At that time you write the meeting password. Okay, so you have to follow the series of instructions. Same way, अगर आप MS Office में भी कोई document type कर रहे हैं, तो after typing the computer asks you, do you want to save? आपको save करना है, save as करना है, कहाँ पे सेव करना है. कंप्यूटर आपको इंस्ट्रक्शंस पूछता है, आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो. ओके, आपने जो भी डॉक्यूमेंट टाइप किया है उसको आपको कहाँ सेव करना है, ये कंप्यूटर खुद डिसाइड नहीं करता. कंप्यूटर जस्ट आस्क यू कि आपको कहाँ सेव करना है. इट इज यू हु डिसाइड कि आपको C ड्राइव में सेव करना है, D ड्राइव में. Okay, so this is all procedure. Next is what is the meaning of data. Now data are the facts and consist of number. Now see, आप सबके हाथ में मोबाइल फोन है. Okay, उसमें डेटा है ना. जब आप लोग रिफिल करते हो तो आपको 2 GB डेटा मिलता है, 3 GB डेटा मिलता है. यस स्टूडेंट, प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज गिव एन आंसर. है ना, मिलता है ना. अगर अगर आपने अनलिमिटेड किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वाईफाई है, तो देयर इज नो नीड कि आपको डेटा चेक करने की जरूरत है कि आफ्टर यूजिंग इंटरनेट आपका कितना GB जो है एक्सपेंड हुआ है. बट सपोज अगर आपने रिचार्ज किया है, सपोज रिचार्ज में आपको एवरी डे, नाउ सी नॉर्मली आप यही रिचार्ज करते हो जिसमें 2 GB डेटा मिलता है ना, 3 GB डेटा मिलता है एवरी डे. एंड आफ्टर लेक्चर सपोज आप लोग चेक करते हो, तो दैट इज कंसिस्ट ऑफ नंबर. फॉर एग्जांपल 1 GB,
ठीक है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एमबी में, फिर वो आपको बताता है कि 1 GB लेफ्ट, देन 9.5 MB लेफ्ट। तो दिस इज ऑल डेटा। तो कंप्यूटर रिक्वायर डेटा, दिस आर द डेटा जो है नंबर्स में होता है या टेक्स्ट में होता है। अगर आप कुछ अल्फाबेटिक लिख रहे हो तो अल्फाबेटिकली होता है। दे आर गेदर एंटर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम. The computer system in turn store, retrieve, classify, organize, and synthesize the data to produce information according to predetermined set of instructions. The data is therefore processed and organized to create information. Okay, and this is relevant. For example, see, मैंने ये आपकी बुक जो है 5 EMS का, इसका फोटोग्राफ निकाला. इसको फोटोग्राफ निकाल के मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया पीडीएफ में. See, what is the difference between the PDF and normal picture? Yesterday I just clicked the picture. तो क्या हो रही थी, पिक्चर ब्लर हो रही थी, क्लियर विजिबल नहीं थी आपको. What I have done, I have instruct the computer to convert that image into the PDF version. Once that image is converted into the PDF version, now अभी आपको ये clear image दिख रही है. Okay, that means कि data जो है, हम उसको जो command देते हैं, तो वो कमांड हमारे इंस्ट्रक्शंस को वो रिट्राइव करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको बोल रही हूँ इमेजेस जो है, जो मैंने फोटो निकाला, डेट इज माय इमेजेस, दैट इमेजेस शुड कन्वर्ट इनटू. तो वो मुझे पूछ रहा है कि आपको वर्टिकल इमेजेस चाहिए, जैसे अभी मेरी जो स्क्रीन है वो वर्टिकल है. ओके, हॉरिजॉन्टल चाहिए आपको, पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए. ओके, ही इज जस्ट आस्किंग मी, और सिर्फ मैं उसको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ और मेरे इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे वो अपने डेटा को रिट्राइव करता है एंड देन जो मेरा डेटा है वो कन्वर्ट करके मुझे देता है. ओके, लास्ट इज कनेक्टिविटी. The manner in which a particular computer system is connected to the other, say through the telephone lines or through the microwave transmission, satellite links, etc. For example, see, अभी आपका लैपटॉप है, you require a charger to start, or you require earphone, you require mouse, you require satellite. That means, for example, Wi-Fi आ रहा है, आपका Zoom जो आपका ऐप चल रहा है, ये सबके लिए क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए. अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो जो है आपका जो फॉर एग्जांपल we are who is talking in between, those see there are very apps there. For example, there is Google app also. With the help of that Google app also we can take the lecture, but Zoom require less broadband compared to the Google web. ठीक है, this is all about data. So we have seen software, we have seen hardware, we have seen humanware, we have seen hardware. Okay, now let's see what is the component of hardware, what are the devices that make up of hardware. Computer hardware is made up of following devices, equipment. First, input device, processing device, and then which process the data. Then there is the output storage device, and there is the आउटपुट डिवाइस. ओके, कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे इनपुट डिवाइस होती है उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल गिव मी द इनपुट डिवाइस का एग्जांपल. अभी आपके पास लैपटॉप है या आपके पास मोबाइल फोन है, तो उसमें इनपुट डिवाइस क्या है, आपने क्या इनपुट किया है उसमें, मदरबोर्ड. हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस आपने इनपुट क्या किया. अभी आप लोग जो लेक्चर सुन रहे हो तो आप सब लोगों ने एयरफोन लगाया है, हो सब लोगों ने ईयरफोन लगाया. हाँ, वेरी गुड. जो आप लोग बाहर से लगाते हो, यस, जैसे फॉर कीबोर्ड लगा रहे हो आप लोग ईयरफोन लगा रहे हो. ओके, या फिर आप लोग ब्लूटूथ लगा रहे हो. दैट इज ऑल इनपुट डिवाइसेस. देयर इज अ प्रोसेसिंग एंड द सेंट्रल यूजिंग. ओके, सीपीयू आपको पता है एक कैबिनेट जैसा बॉक्स होता है जो अभी रिप्लेस हो गया है. नाउ देयर इज अ व्हाट न्यू टेक्नोलॉजी केम, डेस्कटॉप. ओके, सो उसके अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर सारे प्रोग्रामिंग्स होते हैं जहाँ पे जो भी डेटा है वो कन्वर्ट होता है. देन देयर इज अ स्टोरेज डिवाइस. फॉर एग्जांपल रैम जो है, जो स्टोरेज डिवाइसेस है, आप इंटरनल भी मेमोरी उसमें ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फोन में भी आप मेमोरी डालते हो ना, 2 GB 3 GB मेमोरी. ओके, ऑलरेडी मोबाइल फोन में इनबिल्ट मेमोरी होती है, लेकिन टू इंक्रीज आप लोग और मेमोरी डालते हो उसके अंदर. और फिर उसके बाद है आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस फॉर एग्जांपल आप लोग प्रिंट लेते हो तो प्रिंट जो पेपर आपके पास आता है, हाँ, प्रिंटर्स, वो सब जो है आपके आउटपुट डिवाइस है. ओके, Now what is the meaning of input device? जो आप कंप्यूटर के अंदर input करते हो, that is keyboard, mouse are the example of the input device. Other such devices are the magnetic tape, magnetic light pencil, optical scanner. Okay, scanner जो भी होता है, आपको पता है स्कैनर का मतलब मालूम है ना आपको, जो मशीन से स्कैन होता है. ओके, तो वो स्कैनर है. उसके बाद बारकोड रीडर. सी आप मॉल में परचेस करते हो या कोई चीज परचेस करते हो तो एक लाइन होती है,
प्रोडक्ट के पीछे, तो वो लोग कंप्यूटर में इसको स्कैन करते हैं, एक ब्लू कलर की रेस पास होती है, देखा आप लोगों ने? आप कोई भी चीज परचेज करते हो तो स्पेशली इन द मॉल्स, तो वो रेस पास होती है ब्लू कलर की, ओके, दैट इज कॉल्ड द बार कोड, ओके। ऑल और दिस माइक्रोफोन, अगर आप गेम्स लगा रहे हो तो जो भी चीजें गेम्स एक्सटर्नल कुछ चीज, तो वो दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस, जो आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज what is the meaning of central processing system? See again, CPU का abbreviation है central processing system. The input processed by the central processing system of the computer, जो फिजिकल, तो उसको ब्रेन बोला गया, अगेन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, डैश इज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ओके। सीपीयू, फिजिकली द सीपीयू इज नथिंग but the collection of the electronic switches. The CPU is a polling unit, arithmetical logical unit जिसको ALU बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट दैट इज CU, एंड द स्टोरेज यूनिट, ओके। तो ये तीन यूनिट उसके अंदर होता है। फर्स्ट विल सी अर्थमेटिक यूनिट। द अर्थमेटिक यूनिट इज ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। दैट मींस जो भी आप एडिशन करते हो, दैट मींस जो भी चीज आप कंप्यूटर में ऐड की करते हो, या सब्सट्रैक्शन दैट इज माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हो, वो जो कन्वर्ट होता है, ठीक है। सी अब जब कीबोर्ड में आपके न्यूमेरिक कीज होती है, अल्फाबेटिक कीज होती है ना, आपके पास कीबोर्ड है, लैपटॉप है, उसमें न्यूमेरिक कीज होती है, अल्फाबेटिक कीज होती है, और उसके बाद स्पेशल फंक्शंस कीज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉलर साइन डालना है, आपको @ साइन डालना है, तो आपको शिफ्ट के साथ ये सारी चीजें प्रेस करनी पड़ती है। यस स्टूडेंट, यस, या दैट मीन्स कि ये जो स्पेशल अर्थमेटिक है, वो कंप्यूटर को उसके लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यहाँ से आप जो भी लैंग्वेज डालते हो, कंप्यूटर उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और फिर वो आपको नंबर्स देता है। दैट मीन्स अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। देन उसके बाद है control unit. The control unit select, interpret and execute the program instruction. It controls and coordinates the working of all the parts of the computer. See, आप अपने लैंग्वेज में जो भी लिख रहे हो, कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, ओके। कंप्यूटर जो है वो किसी को, उसको पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज नहीं आती। फॉर एग्जांपल, इफ आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, स्पीक मराठी, देन आप लोगों को वो समझ में आएंगी, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को वो सारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कंप्यूटर को उसकी जो लैंग्वेज है वो समझ में आती है। तो आप जो भी चीजें यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू इंसर्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल यूनिट, वो जो है प्रोसेसिंग रिट्राइव करता है डेटा अकॉर्डिंग टू जो उसका लैंग्वेज है, ओके, जो सॉफ्टवेयर जो लैंग्वेज में बना हुआ है, एंड देन वो इंस्ट्रक्शन रीड करता है। सी रीड इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ मेमोरी यूनिट, और वो इंस्ट्रक्शंस जो है मेमोरी में से रीड करता है, एंड देन उसके बाद वो डिकोड करता है। डिकोड करता है मतलब वो अंडरस्टूड करता है कि हम उसको क्या बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई से सेव, तो वो सेव वो उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। देन वो आपको सेव का ऑप्शंस देता है कि आपको सेव क्या करना है। सेट अप द रूटीन ऑफ द डेटा दैट इज थ्रू इंटरनल सर्कुलेटिव वायरिंग टू डिजायर प्लेस। फिर आपको वो पूछता है, वो आपको ऑप्शंस देता है कि आपको कहाँ पर जाके ये सेव करना है, एंड देन जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हो वो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। सो कंप्यूटर इज ए यूनिट जो स्मार्ट है, डेफिनेटली कंप्यूटर स्मार्ट, लेकिन कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट इनफ कि वो जो है अपने आप से कोई डिसीजन ले सकता है, ओके। The last is a storage device. In this area, data is stored before being actually processed. The data stored is assessed and processed. For example, see, now I am doing the recording. ये lecture की मैं recording कर रही हूँ। After जैसे ये खत्म हो जाती है मीटिंग, ओके, मीटिंग जैसी एंड हो जाती है, ये जो मीटिंग है, जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग जो है कन्वर्ट होती है इनटू वीडियो रिकॉर्डिंग। जब कन्वर्ट होती है तो कन्वर्जन टेक अराउंड 5 to 10 मिनट्स, ओके। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होती है, देन वो मुझे पूछता है जूम कि इसको कहाँ पर सेव करना है। देन आई सेव, और फिर उसके बाद में जो है इसको गूगल क्लासरूम में या यूट्यूब पे इसको जो है, तो वो स्टोरेज डेटा होता है जहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो स्टोर होती है, ओके। Is that clear, student? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. I hope you are understanding. Computer तो already you are studying, आप पढ़ ही रहे हो वो, I think बचपन से ही पढ़ रहे हो, है ना? Yes. Okay. Now let's see. What is the meaning of storage devices? No, storage devices के बहुत है। जो पहले storage devices था ना, पहले internal तो होता ही है, लेकिन आप external भी उसको storage कर सकते हो। See, पहले floppy होता था, floppy। किसी को पता है floppy क्या होता है? Floppy एक डिस्क होती थी, एक डिस्क होती है। rectangle आई डोंट थिंक कि आप लोगों को मालूम भी होगा और आपने कभी इसको यूज भी किया होगा। वो ब्लैक कलर की होती है।
हाँ ठीक है, वो ब्लैक, हाँ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती थी, ब्लैक कलर की, उसको हम लोग सीपीयू में इंसर्ट करते थे जैसे हम लोग। और अभी जो है सीडी रोम होता है, पता है आप लोग, क्लिक सीडी हाँ रहती है जैसी, हम लोग सीडी जो है हाँ वो डालते हैं, वो हमारी सारी स्टोरेज डिवाइस है। देन देयर इज अ पेन ड्राइव, पेन ड्राइव तो आप सबको पता है ना, पेन ड्राइव होती है, जिस यस पेन मैम। ड्राइव में हम लोग सारी चीजें सेव करते हैं। तो सपोज हमको लगता है कि हमारा कंप्यूटर कभी खराब हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक बैकअप लेके रखते हैं। तो वो कंप्यूटर में तो फीड होता ही, लेकिन हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस में भी करते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस में पहले फ्लॉपी डिस्क होता था, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता था, ठीक है, आपका लाइब्रेरी कार्ड जैसे रहता है ना, आपके लाइब्रेरी में देखो, जब आप बुक लेते हो तो एक कार्ड मिलता है जिसमें आप नेम एंटर करते हो, सेम वे वैसे ही एक ब्लैक कलर का होता था जो आप सीपीयू में इंसर्ट करते थे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका एक फोटो और वीडियो दिखा दूंगी आपको। लेकिन अभी अभी जो है डीवीडी, पहले सीडी आता था, देन सीडी का हायर वर्जन जो है वो डीवीडी है। ओके, ये सारी चीजें आप इंटरनल स्टोरेज करके उसको रख सकते हो। एंड लास्ट इज आउटपुट डिवाइस, जो आपको रिजल्ट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस से आप चीजें टाइप करते हो और आप प्रिंट का कमांड देते हो, जो प्रिंट आता है बाहर, ओके, तो वो प्रिंटर से जो प्रिंट बाहर आता है प्रिंट कमांड के बाद, तो वो जो है आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर से जो चीजें बाहर आ रही है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। आफ्टर द प्रोसेसिंग इज कंप्लीट, द फाइनल रिजल्ट कैन बी इधर डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर और स्टोर्ड ऑन द मैग्नेटिक डिस्क। ओके, दैट मीन्स अब जो फाइनल रिजल्ट जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये आउटपुट है। जो आपको भी अब ये स्क्रीन दिख रही है ना, वो एक आउटपुट है। मैंने इनपुट क्या किया था, इसमें पीडीएफ डाला था और आउटपुट में मुझे ये बता रहा है। ओके, इमेजेस को जो मैंने कन्वर्ट किया था, दैट इज इनपुट। और जो मुझे ये स्क्रीन दिख रही है वो आउटपुट, प्रिंट आउट जो निकालते हो आप, प्रिंटर जो है, प्रिंटर आप जो है इनपुट है, लेकिन उसके जो पेपर बाहर निकलते हैं दैट इज आउटपुट। कीबोर्ड आप इंसर्ट करते हो और कीबोर्ड से जो कमांड बाहर आता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट। ओके